स्मार्ट सिटी बस अधिकारियों के झूठे आरोप ने महिला कंडक्टर की ली जान। संघ प्रदेश सिलवासा में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी बस में कंडक्टर की नौकरी करने वाली महिला ने आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्मार्ट सिटी बस अधिकारियों ने महिला कंडक्टर सरस्वती भोया के ऊपर चोरी का आरोप लगाकर नौकरी से निकाल देने की बात सामने आ रही है। इस विषय पर महिला कंडक्टर सरस्वती भोया ने गलत आरोप होने की बात अधिकारियों से की थी और अपने पिता से इस विषय पर बस अधिकारियों से बात करने को कहा, जिसके बाद सरस्वती के पिता ने बस अधिकारियों से अपने बेटी के पक्ष में आरोप गलत होने की बातें अधिकारियों से कही। लेकिन अधिकारी तो ठहरे अधिकारी। इन अधिकारियों ने सरस्वती के पिता की एक भी बात ना सुनी और सरस्वती के पिता को भी जलील कर उनके ऊपर भी आरोप थोप दिए, जिसके कारण महिला कंडक्टर सरस्वती भोया को यह आरोप बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। एक निर्दोष महिला कंडक्टर अधिकारियों के आरोप से पीड़ित होकर आत्महत्या कर ली। अब इस आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? सुने सरस्वती के पिता का क्या कहना है समग्र घटना पर। सोनक काकड़ भोया। સોનકભાઈ શું બનાવ બન્યું ને કેમ? આ બનાવ બન્યો તો સાહેબ મારી છોકરી છે ને બસ પર હતી તો બસ પરથી છે ને આ લોકોએ કાઢી નાખ્યું ચોર કરીને. તો અમે છે ને મારી છોકરી કે પપ્પા મારા સાથે ચાલે એમ, મેં તો કાંઈ ગુનો કરેલો નહીં, મળે તો અમને કાઢી કેમ નાખી એમ. તો અમે છે ને ત્યાં ગયા તો આ કે તમે એમ કે માફી લેટર લખીને આપો. તો અમે લેટર લખ્યું સાહેબ. લેટર લખ્યું ને પછી આપવાના એટલામાં આ લોકોનો ખાવાનો ટાઈમ થઈ ગયો તો અમે બેહી રહેલા એટલામાં પછી મને તો નહીં ખબર, પણ આ રવિ સર આવે ત્યારે એમ કીધું એટલે તે નામ પરથી મને ખ્યાલ કે આ રવિ સર એમ. હવે પછી આવ્યો રવિ સર એટલે બોલાવ્યું વિમલ મહાલા કરીને તેને કે તને સર બોલાવ્યો એમ કે. એટલે મારી છોકરી ગઈ ને મેં છે ને કામ બેહેલો તો એમ. તો છોકરીને એમ તેમ પૂછપરછ કરતામાં છે ને છોકરીને પછી આ લોકો કહે કે તમે ચોર છે એમ. તો તે કહે કે સર અમે ચોર નથી મળે એમ, અમે ચોર રહેતે તો આજે અહીંયા આવતે કે અહીંયા નહીં આવતે એમ. પછી આને બહાર કાઢ્યું ને મેં બેહેલો તો આવીને બેહીને મારા ખંભા પર માથું લાખીને રડવા લાગી, પપ્પા મને ચોર કહે એમ. તો તું બી ચોર ને તારો પપ્પો બી ચોર એમ. તો આ વાત પરથી છે ને સાહેબ આને ખોટું લાગ્યું કે મેં ચોરી કરેલી નહીં, મેં ગુનામાં મળે ને મેં ગુનામાં રહેતે મેં ઓફિસ પર શું કરવા આવતે એમ. આમ કરીને મારા છોકરીએ કીધું. પછી આ લોકો કહે તમારે જ્યાં જવાના ત્યાં જાઓ, પોલીસ સ્ટેશનમાં જાઓ, કોઈ મોટા સરપંચને બોલાવો, કોઈને બી બોલાવો તમે, પણ કાંઈ થાય ને એમ. ને તમારે એ કરવાનું હોય તો પછી તમારા પર ભરપાઈ કરવા આવે. છોકરીએ એમ બી કીધું કે મેં કેવી રીતે ભરપાઈ કરું એમ. મેં કંડક્ટર છે તો પેસેન્જરની જવાબદારી રહે કે નહીં રહે, આવું છોકરી કે. પછી મેં કીધું કે આપણાથી હવે ભરપાઈ માંગે તો આપણા ગરીબ માણસ. મેં જઈને મેડમને કીધું બી મેડમ અમે માફી માંગીએ. કઈ મેડમને? તેને મને નામ નહીં ખબર, પણ ત્યાં બેહેલા આવતા અમને બેહાલે લેટર આપવા કીધેલું હતા. અમે માફી માંગીએ કે મારી છોકરી ચોર નથી મળે એમ, મારી છોકરી ચોર નથી મળે એટલે તમે અહીંયા આવ્યા, અમે ખાલી લેટર આપવા માટે આવ્યા એમ. પણ તમે તો અહીંયા બેહાડ્યું એટલે મેં તે બેહેલા. સ્માર્ટ સિટીમાં તમે દીકરી હાથે ગયા, કેવું વર્તન થયું તેને? તો કેવી વર્તન કેવી રીતે થઈ તમારા? તો વર્તન તો હું સાહેબ અમે છોકરી મને લઈ ગઈ કે ને કે જાય એમ. મેં એકલી જ એમ કે તો મારા હાથે પપ્પા તું ને આવે તો કોણ આવે? તો મેં કોઈ ચાલ મેં આવું ને. આપણે જો ગુનામાં નહીં મળે પછી જવા પડે કે નહીં. છોકરી એકલી તો છોકરીને એકલીને થોડી મોકલાય. घटना की जानकारी मिलने के बाद दमन यूथ एक्शन फोर्स के प्रमुख उमेश पटेल और सिलवासा के कांग्रेस नेता प्रभु भाई टोकिया ने सरस्वती भोया के पिता से मुलाकात की और समाज विषय की जानकारी ली और सरस्वती को न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। इस घटना के बाद हड़ताल पर उतरे कंडक्टरों से भी उमेश पटेल और प्रभु टोकियो ने मुलाकात की और उनसे समग्र घटना के विषय में जानकारी ली। आइए जानते हैं इस विषय पर उमेश पटेल का क्या कहना है। नमस्कार साथियों, आज मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है सिलवासा में। वजह बनी है भारतीय जनता पार्टी शासित नगर पालिका सिलवासा। आज
मैंने जैसे ही सुना कि 25 साल की युवा हमारी बहन ने सुसाइड कर लिया है, और जैसे ही मैंने सुसाइड का कारण जाना, मुझसे रहा नहीं गया और मैं बहन के परिवार के सदस्यों से मिलने गया था। वहाँ जब मैं गांव में गया तो पता चला कि वो बेटी परिवार की एकमात्र सदस्य थी, अपने पिता का सहारा थी, एक लौती बेटी थी। और उनके पिता रोते रोते कह रहे थे, मैं भी एक बेटी का बाप हूं, मैं भी जानता हूं कि बेटी के प्रति बाप कितना लगाव रखता है, कितना अटैच होता है। सही में जब उनके पिता रोते रोते मुझे सब बातें बता रहे थे, जाने उनकी बातें मुझे मेरे छाती को चीर रही थी। और ये घटना घटी तो कौन सी, किस बाबत पर, ऐसी बाबत पर प्रशासन ने इतना विवश कर दिया होगा कि वो लड़की को आत्महत्या कर लेना पड़ा। बात थी चंद रुपयों की, बात थी मामूली सी। बात क्या थी, वो बच्ची जो थी वो स्मार्ट बस, जो हमने ई बस चालू की है स्मार्ट सिटी के नाम से, उस बस में कंडक्टर थी। उस बस में स्कूली छात्र बैठे थे। अब स्कूली छात्र बैठे थे तो अब वो एक मैटर भी है जो पेचीदा है। बच्चे छोटे होते हैं तो उनके हाफ टिकट लेना है, फुल टिकट लेना है। काफी बार ऐसा भी होते हैं कि वो छात्रों के पास पैसे भी नहीं होते हैं, और ये जो बच्चे होते हैं तो उनकी टिकट में उन्होंने कहा जा रहा है कि वो 5-7 बच्चे होंगे, उनकी एक साथ में टिकट उसने फाड़ ली। उस दरमियान बस में चेकिंग आ गई होगी। तो लड़की का तो कहना यही था, उनके परिवार का कहना यह है कि लड़की की कोई गलती नहीं थी, कुछ छात्रों ने टिकट नहीं ली होगी, कुछ छात्रों ने। तो वो बच्ची को सर्विस से उनको निकाला तो नहीं, मगर होल्ड पे रख दिया और कहा जाने लगा कि तुमने चोरी की है, तुम्हें माफीनामा लिख के देना होगा। तो बेटी अपने पिताजी को लेकर नगर पालिका गई। बोले कोई अधिकारी का नाम लिया, मुझे कंफर्म नहीं है, रवि ठाकुर कुछ नाम था। बोले पूरे स्टाफ के सामने उस लड़की को चोर कहा, तुम चोर हो, तुम्हारा बाप चोर है, और परिवार को चोर कहने लगा। और पूरे परिवार के सामने और उसके पिता के सामने, पूरे स्टाफ के सामने। तो बोले उसका पिता बोला कि मेरी बेटी मेरे कंधे पर सर रख के रोने लगी और बोली कि पापा मैंने चोरी नहीं की है, अगर हम चोर होते तो हम क्यों आते यहाँ, मेरी गलती क्या है, मैंने क्या चुराया है। फुटेज आप देखिए, क्योंकि बस में फुटेज लगाए। और बोले वहां से मेरी बेटी दुखी होती हुई घर पे आई और इतनी आहत और अपमानित महसूस कर रही थी कि उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। उसका पिता रोते रोते मुझे बता रहा था कि हम चोर नहीं है बेटा, और ना मेरी बेटी चोर थी। अब सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं उस अधिकारी से, कर्मचारी से, तुम होते कौन हो? तुम जज हो, तुम ही पुलिस हो, सब कुछ तुम ही हो, तुम ही पुलिस, तुम ही कोर्ट, तुम ही जज, और तुमने फैसला ले लिया कि वो लड़की ने चोरी कर ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बस जो है, उसके स्टाफ जो होते हैं, ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, वो सभी तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। और वो कॉन्ट्रैक्टर को कोई वापी की एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, ग्लोब लेबर एंड सिक्योरिटी सर्विस। अगर वो बस का कोई भी कर्मचारी अगर कोई चोरी करता है या कुछ भी करता है, तो ये प्रशासनिक अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्टर पर एक्शन लेना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को निलंबित करना चाहिए।
आपने डायरेक्ट स्टाफ को कैसे बुलाया अपनी ऑफिस में? और आप कौन होते हो डायरेक्ट बच्चों को कहने वाले कि तुम चोर हो, तुम्हारा बाप चोर है? और ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, काउंसिलर्स, पदाधिकारी कहां हैं? क्या मर गए वो लोग? आपकी नगर पालिका में अधिकारी हो या नगर पालिका का कर्मचारी, इतनी मनस्वी, इतना तानाशाह, अरे प्रदेश में हो क्या रहा है? प्रशासन से तंग आकर हमारे सांसद जी आत्महत्या कर लेते, प्रशासनिक अधिकारियों से तंग आकर हमारे आदिवासी कर्मचारी, अधिकारी, एसएस बोया, जिग्नेश काछा जैसे होनहार कर्मचारी, अधिकारी आत्महत्या कर लेते हैं। एक मामलेदार ने कुछ दिनों पहले वो बेचारे का आशियाना घर तोड़ने गए थे, वहां पर जयंती भाई बर्फ नाम का व्यक्ति ने अपने आशियाने को बचाने के लिए कोशिश की, अपने आप को पेट्रोल छांटकर आग लगा ली, और निर्दयी प्रशासन उसमें भी नहीं पिघला, उसमें भी नहीं सुधरा। कितनों की जान लेगा ये प्रशासन? कब सुधरेंगे? हत्यारा बन गया है हमारा प्रशासन। आए दिन आप लोग इस प्रकार से मनस्वी फैसले लेने लगे हैं, इतने तानाशाह हो गए हैं। पहले तो ऊपर का एक ही था जिसके तानाशाही दादागिरी चलती थी, फिर नीचे बढ़ते बढ़ते मामलेदार दादागिरी करने लगा। अब एक तुच्छा सा एक कर्मचारी की दादागिरी इतनी कि हमारी बहन बेटियों को लज्जित करे, अपमानित करे, और उसको, हमारी बहन को आत्महत्या करना पड़े। छी, ये लोग सही है? हमारे प्रदेश में ये हो क्या रहा है? जब से नया प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल आए, ये कौन सी प्रथा चालू हो गई है? प्रदेश के लोगों को आत्महत्या करना पड़ रहा है, और कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। सिर्फ चुनाव में वोट चाहिए। 48 आवर्स हो गए, 48 घंटे हो गए, अभी तक एक एफआईआर नहीं हुई। पुलिस ऐसे तो बहुत दौड़ दौड़ के एफआईआर करती है। किसी निर्दोष का घर तोड़ता है, किसी निर्दोष ने थोड़ा सा इलीगल काम कर लिया हो तो तुरंत कार्यवाही होती है। छोटी सी वारदात के लिए पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, आदमी को कुत्तों की तरह डाल डाल के ले आती है और उस पर एफआईआर करके कार्यवाही कर देती है। आज 48 आवर्स हो गए, क्यों एफआईआर नहीं हुई? ऐसे ही जयंती भाई बर्फ में भी किया था। क्या किया जयंती भाई बर्फ ने? खुद को आग लगा ली। उसकी मौत के जवाब देखो भी आज तक एफआईआर हुई, किसी पर कार्यवाही हुई? मतलब हमारे लोग मरते रहेंगे और अधिकारी अपनी मनमानी करते रहेंगे। अरे वहां पर सारे कंडक्टर सुबह सुबह 5 बजे से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। अभी शाम हो गई, बस सारी बंद है, फिर भी कोई अधिकारी वहां पर सुन लेने नहीं गया, पूछने नहीं गया। मतलब कितने हाई लेवल की तानाशाही है, दादागिरी है। तो ये सारी खामियां हमारे वीक लीडरशिप की वजह से, हमारे ये सत्ता के लालचू, पैसा के भूखे, मैं तो कहूंगा भेड़िए और हैवान हो गए हैं हमारे नेता लोग। ये जिला पंचायत हो, नगर पालिका हो, या हमारे दूसरे पद पर बैठे हुए। अरे आप लोगों को सिर्फ क्रिकेट में क्रिकेट लीग खिलाने के सिवा और कोई काम नहीं है? किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? किस दिशा में हमारा भविष्य जा रहा है? आज एक निर्दोष बच्ची को आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ा। आज ये पहली घटना है। हमारे सांसद को खोया, जिग्नेश भाई काछिया को खोया, हमने एसएस बोया को खोया, अभी थोड़े दिन पहले जयंती भाई बर्फ नाम के आदिवासी को खोया, अभी ये बहन को। मतलब बड़े बड़े लोग मरते हैं, हमारे प्रदेश में आंदोलन होंगे। अब गरीब मरेंगे तो कुछ नहीं होगा। जयंती भाई बर्फ की मामला भी निपट गया, और ये मुझे लगता है सरस्वती मेरी जो बहन है जिसने आज आत्महत्या की है, उसका मैटर भी सुलझ जाएगा। क्योंकि हम सबको तो सिर्फ चुनाव में वोट चाहिए ना, और जनता को भी क्या है, हमारे युवाओं को तो क्रिकेट लीग खेलनी है,
वो भी टेनिस। बस हम खेलते रहेंगे, हमारे लोग मरते रहेंगे, हमारे हक और अधिकार लोग छीनते रहेंगे, अधिकारी ऐसे ही दादागिरी करते रहेंगे। अब तो दादागिरी इस लेवल पर पहुंच गई है। पहले तो ऊपर ही दादागिरी होती थी, अब तो छोटे से छोटा कर्मचारी हम पे दादागिरी गुलामी करा रहा है। क्यों ना कराए? है कौन जिंदा? प्रदेश में सारे के सारे लोग जिंदा लाश बन गए हैं, सिर्फ नाम से जी रहे हैं। लोगों की आत्मा मर गई है। उम्मीद करता हूं कि दमन का प्रशासन जागेगा और हमारे नेता जागेंगे, हमारी जनता जागेगी। और मैं मांग करता हूं दमन प्रशासन से कि तुरंत से तुरंत जिस भी कर्मचारी की, जो भी अधिकारी की वजह से यह घटना घटी है, उसको तुरंत सर्विस से निलंबित करें, उस पर एफआईआर करें और उसको जेल में डालें। यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। एक तरफ तो हम नारी सम्मान की बातें करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, और हमारी बहन बेटियों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। इस बार नहीं सहेगा प्रदेश। उम्मीद करता हूं कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली की जनता जागेगी और इस पे न्याय मांगेगी। प्रशासन को इस घटना से जुड़े सभी अधिकारियों के ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी घटना का शिकार कोई और न हो जाए। और यदि इस घटना में अधिकारी आरोपी पाए जाए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यह समग्र घटना के बाद स्मार्ट सिटी बस के सभी कर्मचारियों ने हड़ताल कर सरस्वती भोया को न्याय दिलाने के लिए स्मार्ट सिटी बस अधिकारियों के विरुद्ध में शांतिपूर्ण हड़ताल की। सुने क्या कहना है बस कर्मचारियों का। मेरा नाम शीतल है। अपना इलेक्ट्रिक बस में कंडक्टर में जॉब करती हूँ मैं। आज क्या हुआ था? आज का बताए तो हम लोग सुबह से इधर 5 बजे से आके बैठे हैं। हमारी एक कंडक्टर है सरस्वती, उसने कल सुसाइड कर लिया। उसके भी रीज़न मैं बताती हूँ। एक्चुअली बहुत दिनों से उसको होल्ड पे रखा था और वो कल सिलवासा स्मार्ट सिटी में गई थी माफ़ी पत्र देने के लिए, सॉरी बोलने के लिए कि मेरे को जॉब पे रख लो, मेरी कोई गलती नहीं है। उसका उधर सुना भी नहीं गया, उसको बहुत कुछ सुना कि उसको भेज दिया गया कि तुम चोर हो, ये है वो है। उसके पापा भी उसके साथ में गए थे, उसके पापा के सामने उसको बेइज्जत किया। वो लड़की ने डिप्रेशन में आके क्या पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने घर पे जाके सुसाइड कर लिया। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि बस हमको जवाब चाहिए कि भाई अगर कोई बंदा उधर गया है बात करने के लिए तो एटलीस्ट आप लोग सुनो ना सामने वाले की बात। कौन से अधिकारी के पास गए? वो तो एक्चुअली मुझे पता नहीं है, वो अभी उधर कौन सर थे, क्योंकि 2-3 सर थे ऐसा, वो उसके पापा ही बता रहे थे। उनसे उसने बात किया, वो बार बार बोल रही थी सर मेरा गलती नहीं है, मेरा गलती नहीं है, आप एक मेरे को चांस दे दो, मैं चाहिए तो सॉरी नामा लिख के दे देती हूँ। उसको बहुत उधर बोला गया कि नहीं आप चोर हो, आप लोग चोर हो, आप लोग पैसा खाते हो, ये करते हो वो करते हो। चलो ठीक है, माना उसकी गलती भी है, लेकिन एक बार तो मौका देना चाहिए ना इंसान को बोलने के लिए। मेरा कहना ये है। अब वो लड़की, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वो अकेली कमाती है, उसके 4 भाई है, उसके पापा बेचारे एकदम अभी आए थे इधर, बुजुर्ग है, रो रहे थे कि मेरी बेटी को चोर बोला, बेटी को चोर बोला, रो रो के गए वो अभी कॉटेज। तो आप क्या कितने दिन चलेंगे तब तक नहीं है क्या हड़ताल? जब तक इधर कोई सर नहीं आते हम बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग करेंगे। हमारे यहाँ पे एक सरस्वती करके एक कंडक्टर जॉब करती थी। अनफॉर्चुनेटली उसका कुछ उसमें नाम आया था, नगर पालिका हो गया या ग्लोबल हो गया, जो भी हो गया, उसको होल्ड पे डाला गया था। पता नहीं था मुझे भी, लेकिन उसको भी होल्ड पे डाला गया था। तो उसने कल सुनने में आया है कि कल सुसाइड कर लिया है। और ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है कि हमारे कंडक्टर मतलब एक फैमिली रहती है, 60 कंडक्टर जॉब करते हैं। कोई भी कुछ भी हो, कुछ भी छोटी बड़ी बात हो, लेकिन सुसाइड कर लिया ये बहुत ही बुरी बात है। हमारे उनके परिवार के लिए हमें संवेदना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये मतलब गलत स्टेप उठा लिया है लड़की ने, या कुछ भी वॉट एवर कुछ भी प्रॉब्लम हो वो हम आगे नहीं बता सकते। लेकिन अभी जो भी हुआ है हमारी नज़र में, हम एक परिवार की नज़र में कि एज ए सुपरवाइज़र मेरे अंडर में ही जॉब करते थे जितने भी कंडक्टर थे, मेरे लिए बहुत बुरा हुआ है और ये मेरे लिए बहुत आघातजनक है। कितने दिनों से होल्ड पे? सर आइडिया नहीं है, ऐसे मेरे हिसाब से मान लो ना आप 1 हफ्ते से 7 डेज। हाँ 3 लोग को होल्ड पे बिठाया गया था सर।